वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी ठीक बिल्कुल? जी सर। अच्छा, today we are discussing about फर्स्टली लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रोड मैप हमारा कैसे होगा, हम लोग कैसे चलेंगे, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों में से कितने लोग जो उनसे ओरिएंटेशन में थे और किन्होंने ओरिएंटेशन ज्वाइन नहीं की थी, काइंडली प्लीज़ टेल मी। और इफ़ यू हैव क्लियर दैट रोड मैप, मुझे तभी बता दें। इफ़ द रोड मैप इज़ नॉट क्लियर रिलेटेड फ्रंट एंड, तो मैं आपको अगेन जो सा है रोड मैप एक दफ़ा आपका जस्ट फ्रंट रिलेटेड फ्रंट एंड आपको मैं बता देता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। जी मुझे जी। रोड मैप क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मैं लास्ट क्लास में थी नहीं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सबको दोबारा आपका जो जस्ट फ्रंट एंड का रोड मैप है ना वो मैं दिखाता हूँ। उस दिन तो मैंने आपको फ्रंट एंड और फुल स्टैक दोनों को दिखाया था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली जी हमने चलना है, ठीक है। तो आज मैं जस्ट आप लोगों को फ्रंट एंड का रोड जी मैप जी। दिखाऊंगा जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपने थ्रू आउट द इंटर्नशिप चलना है। So I am sharing the screen with you of our roadmap that we follow during that internship. So this is our roadmap that we follow during this duration is 2.5 months. It most probably 10 weeks. Okay. So in this we starting it from the roadmap design, prepare for the students, industry ready front end developers. The program start from programming and web fundamentals and advanced to modern front end development using these frameworks React and Next.js. Also Tailwind CSS. If anyone want to use Tailwind CSS, he or she can use Tailwind. Otherwise, they use Bootstrap instead of this. And Redux toolkit. Redux toolkit is a part of React. Okay, ending with the real-time individual front-end project. Okay, starting learning path we have C++ programming, basic logical foundations or fundamentals. Then we have HTML structure and semantics. We have CSS. Then we have Bootstrap or Tailwind CSS. The JavaScript we're using in that is ES6 version. Now the JavaScript version is ES6 that we using. Okay. Then we have further React and these are the frameworks React or Next. The difference between the React and Next is not major. There is a minor difference between these two frameworks. React you can say first, React come first, and the Next.js is the advanced form of the Next.js. Sorry, React.js, and in that we have just minor changes in their structure, and you can say client and server side we handle in both, but we have minor changes in both of them just. Then further we have React hooks, then we have Redux toolkit as well, then we have real-time project front end at the end of that internship. This is our outline. Okay, in first week we cover these topics C++ and OOP. Then we have rated that we assign you weekly task. Then we complete our HTML CSS fundamentals. Then according to that we learn in that HTML5 structure, semantic tags, form, imports, CSS basics.
responsive designs, weekly tasks we cover in that. After that, then we learn about Bootstrap and Tailwind CSS. Okay, then we this is the main part of Bootstrap is Bootstrap grid system. Okay, then we have Bootstrap component, Tailwind CSS setup, utility first design. Okay, then we implement it in our project. Okay, the project we starting from here. Okay, first we make it simple, then we implement this thing in that, then we move in this step. Okay, then we move on JavaScript, we implement this in that things. Okay, then we move in the React, then we our previous project we make totally in the React. In React we have React introduction, JSX, components, props, states, component life cycle basics of the React. Okay, then further we have React hooks and routings. Okay, use state, use effect, these are the important hooks of React that we use for uh, easy to use in our project with the React and make our work easier. Okay, then we have a Redux toolkit that is a part of our React that is used for managing all the states globally in the project. Okay, then we have week 9 to 10, there we have real time front end project by we assign to individuals. Okay, so you all of you working on that. So this is our roadmap, and if you have any confusion. Sir. Okay, so now this is our fully roadmap from start to the end. This is a flow diagram for our learning flow. Then we have evaluation criteria we mentioned in this document, and after the class I just share this document in the group as well. So please all of you, those students, raise your hands who have 100% concept clearance in C++ and O. Just those students who have proper concept clearance in C++ and OOP, those students please raise their hands. The student you have Najiba, you have all the concept clearance in the C++ and OOP. सर यस बट रिवीजन की ज़रूरत है. Sure. uh, the students who have 70% of concept clearance in C++ and OOP, please those students raise their hands. Okay, अस्सलाम सर. welcome salam. सर मुझे जावा जावा एंड ऊप में क्लियर, मतलब जावा में मैंने ऊप पढ़ी थी, तो Okay. जावा में आती है. So after the class I just create a poll in the group. You just mark your percentage on the basis of I just assigning, like you have, and those students please tell me who didn't have any concept about C++ and OOP, like they didn't clear yet, they didn't have any concept in C++ and OOP, just raise their hands. Sure. So we do C++ and OOP from W3 schools. Okay, we have two platforms to make our C++ and OOP more stronger by practicing more. Okay, I will give you a functions about that. I will tell you what we do before the next class. I will give you some topics.
you did clear it before the next class, inshallah. Okay. Okay, sir. So I am showing you the topics from W schools. We have, I'm just showing you a screen of this. So we have the C++, we starting from here. Okay. So this is a intro, and C++ is here. We end the at the lambda. Then OOP is starting from here. So I do some questions from all of you one by one. Just answer me. Just I am testing your basic concepts. This is not a test. This just I see you have how now about C++ and OOP or not. So please, firstly, Aisha Jamil, please tell me what are the data types. Please tell me. So data types are int, boolean, float, and string. Okay. Okay. uh, ठीक है. Next question is from Najiba Arshad. um, what are the arrays and objects? सर अरेज तो वो होती हैं जिसके अंदर आप अपना स्टोर कर सकते हैं डेटा। जैसे कि इंट अरेज में होता है, इंटीजर अरेज होती हैं जिसमें आप अपना 1 2 3 ये वाली चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग अरेज भी होती हैं। और ऑब्जेक्ट्स आपने पूछा Yes, है, yes. ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट वो होता है क्या कहते हैं, जैसे आप एक ही अरे में ना सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे नेम आपने लिखा वो आप उसका स्टोर कर देंगे, एज लिखी वो स्टोर कर देंगे, वो जेंडर लिखा वो स्टोर कर देंगे, Okay. लाइक एक ही रो में, Okay. अरे में। So from where the indexing of arrays is starting? 0। Okay. Good. Next question is from Hamna Riaz. Is array or data type or data structure? Hamna Riaz. Data structure. Okay. And next question is from next question is from Hasib Ahmad. Hasib, please tell me that why we use the while loop, why we need that, and what's its condition for running. Please tell me. Hasib Ahmad. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी जी आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है सर मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है. आप मुझे ये बताइएगा वाइल लूप को हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसकी कंडीशन किस टाइम पे ट्रू होती है और किस टाइम पे ये रन करता है. मुझे जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा जितना आपको पता है. सर वाइल लूप तब रन करता है जब कंडीशन ट्रू हो। ठीक हो गया. फर्स्ट टाइम पे ये रन करती है मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी फर्स्ट टाइम पे. तो ये फर्स्ट टाइम पे आपका जो हम लोग जैसे सी आउट, हम लोग एक मिसाल है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि जी मुझे एक आउटपुट चाहिए. ठीक है. एक यूज़र से हम एक इनपुट ले रहे हो तो मैं आउटपुट चाहिए. ठीक है. तो वो आउटपुट फर्स्ट कंडीशन में रन करती है या नहीं करती है, सेकंड कंडीशन में रन करती है. मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप.
अगर कंडीशन ट्रू हो जी कंडीशन ट्रू हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी बताए, अगर कंडीशन ट्रू हो तब भी बताए कि वो प्रिंट करती है या नहीं करती। सर नहीं करती तब। ठीक हो गया। अगर फॉल्स हो, जी। अगर ट्रू हो तब रन करती है, अगर ठीक है, फॉल्स हो तब नहीं करती है। ठीक हो गया, ठीक है, ओके। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जवेरिया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यू। व्हाट आर द पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस? जवेरिया इंतखाब। ये सर पॉइंटर्स जो है वो हमारे पास एड्रेसेस को रेफरेंस देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम उज़ैर, मोहम्मद उज़ैर तारिक। Yes, sir. What are the enums in the C++ and why we use that? सर ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है जो फिक्स सेट ऑफ नेम और इसमें कांस्टेंट वैल्यूज वगैरह स्टोर होती हैं। ये हम कोड रीडेबल हो जाता है इससे इजीली, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। एरर्स इस कम होते हैं इसमें। इसमें इसमें हम लोग किस तरह की चीज़ों को रखवा सकते हैं, लाइक कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी यूजेबिलिटी कहाँ होती है ज़्यादातर? कोई एग्जांपल छोटी सी। जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट स्टेट्स हैं, उसमें रेड ग्रीन येलो वगैरह, उसमें हम इसको ठीक कर है, लेते मतलब हैं कि यूज़। हम लोग फिक्स वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं इसको, ये नॉट चेंजेबल होती हैं, जी, ठीक है, ठीक है। ये नॉट चेंजेबल होती है, इसको फिक्स वैल्यूज के लिए यूज़ इसको करते हम हैं। लोग, मैं आपको बताता हूँ, ठीक, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसको हम लोग बैकएंड पे यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग जब बैकएंड के अंदर अपना कोई, आपने देखा होगा जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल होते हैं, उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि लाइक हमारे पास रोल्स होते हैं, एक एडमिन होता है, स्टूडेंट का रोल होता है, टीचर का रोल होता है। तो ये रोल्स की बेस पे बैकएंड पे एज अ इनम यूज़ होता है, ठीक हो गया। दे आर नॉट चेंजेबल। जी ठीक है, रोल्स आपका कुछ भी, रोल ठीक हो आपका गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नॉट चेंजेबल होते हैं, ठीक हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड एनम, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है उज़ैर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ईशा, ईशा सलीम। Isha, please tell me that what are the four pillars of OOP? Name them, please. Sir, encapsulation, Mm-hmm. polymorphism, abstraction, or Okay. inheritance. Okay. और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिसम अब्बास। मिसम अब्बास, आर यू हेयरिंग मी? हाँ जी। My question is from you is that what we do in the inheritance, please define the inheritance. इन इनहेरिटेंस हम एक क्लास, हम एक चाइल्ड क्लास जो है वो रखवाते हैं, और पेरेंट क्लास में उसको करवाते हैं कि पेरेंट का जो डेटा है वो क्लास के अंदर आए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कार की लेनी है, हम्म। मतलब कोई व्हीकल है, अब हम उस व्हीकल के अंदर रखवा देंगे कार्स बाइक्स वगैरह, वो सब हम उसके अंदर रखवा देंगे। ठीक हो गया, मतलब ठीक हम्म। समझ गया हूँ। मतलब हमारा इसमें बेसिकली मेन पर्पस ये होता है कि हमने पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड से ग्रैंड पेरेंट में डाटा कैसे भेजना, किस मेथड के थ्रू हमने भेजना, तो उसमें बेसिकली हम लोग ये करते हैं। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सानिया शौकत। सानिया प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट इज़ polymorphism, define the polymorphism. Sir, polymorphism means one name or multiple forms. Okay. सर इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक कंपाइल टाइम जब फंक्शन ओवरलोड होता है, ठीक हो और गया, एक रन टाइम जब फंक्शन उनमें ओवरराइडिंग होती है। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम Zobia Masood. Zobia, please tell me what is abstraction.
सर मैंने सी प्लस प्लस ऊप्स नहीं पढ़ी है। ठीक है, मैं आपको ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर फ्रॉम क्या ये जरूरी होती है जी जी, ये देखें फ्रंट एंड में देखें, ऊप्स? मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरी होती है। देखें, मेरे पास HTML CSS जो बूटस्ट्रैप है, दिस इज़ जस्ट अ डिज़ाइन। सी जो साहब का है ना HTML CSS बूटस्ट्रैप, दिस इज़ जस्ट अ डिज़ाइन। जब उस डिज़ाइन के अंदर आप ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, ये लॉजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लूप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके 4 पिलर्स ऑफ ऊप, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये चीज़ें हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं। हम जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज है C++ जो हम यूज़ करते हैं, और ऊप, ठीक है। ऊप एक एडवांस वर्जन है C++ का, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, और उसमें इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो सी है कोड की लेंथ है वो छोटी हो जाए। जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर आपकी C++ और ओप क्लियर है, आपकी जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। दिस इज़ प्रॉपर लैंग्वेज। हमारे पास प्रॉपर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? C++, C#, C#, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स एंड PHP, जो बैकएंड पे यूज़ होती है हमारी, और फ्रंट एंड पे भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको प्योरली यूज़ करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जावा स्क्रिप्ट क्यों बनाई है? स्क्रिप्ट इसीलिए बनाई है ताकि हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए वहाँ पे चीज़ें कर लें, ठीक है। हर लैंग्वेज का, हर चीज़ का साइंटैक्स अपना है, जस्ट हम कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है, साइंटैक्स का डिफरेंस आ जाता है मेनली, ठीक हो गया जी। आपका क्वेश्चन क्या? बट सर हम लाइब्रेरीज को भी यूज करके जो है अपने कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करके शॉर्ट कर सकते हैं, बताएं मुझे लॉजिकली। रिएक्ट जेएस भी तो है। तो रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस में अगर आपकी लॉजिक ही नहीं होगी, आपकी रिएक्ट जेएस में इफ एल्स की कंडीशन नहीं होगी, तो आप कहाँ से काम करेंगे, मुझे इतना जी बताएं जी जी नहीं, जी। कंडीशंस और लूप्स तो मैंने मतलब कंडीशंस भी पढ़ी हैं, लूप्स भी पढ़े हैं, हाँ जी, और हाँ जी। मतलब कि पूरा जो जावा स्क्रिप्ट होती है पूरी स्ट्रांग है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बट लेकिन मैंने तो ये जो है वो सी प्लस प्लस और oops के बारे में मतलब पढ़ी नहीं है, तो मतलब नहीं, आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर अरेज, ऑब्जेक्ट्स, उसके लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, 4 पिलर्स ऑफ ऊप, हमारी इनहेरिटेंस कैसे होती है, अगर रिएक्ट में आपने काम किया हुआ है तो आपको पता होगा कि पेरेंट्स से चाइल्ड में डाटा कैसे भेजते हैं और चीज़ें कैसे भेजते हैं, वो कहाँ से आ रहा है सारा कुछ, वो डिराइव ही यहाँ से हो, जी मुझे ना ये वो डिराइव ही यहाँ से हो रहा है। हम लोग उसकी पिछली बेस को नहीं जी देखते। सर मुझे एक मिनट, जी जी, बताएं। मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जी जी। बट ना मुझे अभी ये जो इनहेरिटेंस का मतलब इन्होंने बताया था ना, तो मुझे इनहेरिटेंस तो मुझे नहीं पता था क्या होता है, लेकिन जो इन्होंने इसका जो मीनिंग बताया ना, तो वो हम लोग यूज करते हैं मतलब प्रॉप जो रिएक्ट में होता हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो जो है वो प्रॉप भी यही अ, काम करता है बिल्कुल, कि प्रॉप पेरेंट टू प्रॉप चाइल्ड कम्युनिकेट करवाता प्रॉप यही काम करता है, बट मैं आपको चीज़ बताऊँ ये क्यों है। ज़रूरी जी है। ये जब हम लोग एक चीज़ की बेस को पकड़ते ही नहीं, हम लोग जाते हैं चौथे स्टेप पे डायरेक्ट, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ही होता है आप इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाते, ठीक है। ओ वो इंटरव्यू यहाँ से आते हैं, वो आपसे पूछता है इनहेरिटेंस क्या है, 4 पिलर्स ऑफ ऊप क्या है, आप वहाँ पे क्या जवाब देंगे? वहाँ पे आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने वो चीज़ की हुई है लेकिन मैं बता नहीं सकती, वो क्वेश्चन का आंसर तो नहीं देंगे ना आप यहाँ पे। जी तो मेनली चीज़ ये होती है, हम लोग जी जी ये बेसिकली बेस है। देखिए, एक चीज़ की बेस अच्छी नहीं ना, वो आप उसके ऊपर जितना मर्जी बड़ा घर बना लें, वो गिर जाएगा एक टाइम पे आके, ठीक हो गया। बेशक जी आपको, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको डीमोटिवेट या वो चीज़ नहीं कर रहा, आपकी डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे होंगे, आपकी जावास्क्रिप्ट भी अच्छी होगी, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल पॉइंट और इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ ताकि हमारी जो चीज़ है उसको हम लोग एक बेस को जब क्लियर करके चलेंगे ना, तो आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आप इस बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, ओके आपको चीज़ें आती हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं आती, आपको पता है, लेकिन इस बेस को थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग करना ताकि जी जी इंटरव्यू जी वाइज हमारा बेसिक मकसद होता है, हम लोगों ने काम करना मकसद नहीं है, ठीक है। काम करना मकसद नहीं है, बेसिक मकसद ये है कि आपको ओके इंटरव्यू के रिलेटेड और आपके करियर और फ्यूचर के रिलेटेड हम आपको अच्छे से ट्रेन करें हर लिहाज से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि जी C++ रूप करनी ही नहीं है आपको, मैं डायरेक्टली HTML और इन चीज़ों पे लगवाता हूँ, कल को आपने किसको बुरा बोलना है? मुझे बोलना है कि आप इन्होंने तो हमें बताया नहीं था, टाइम ज़ाया किया, ठीक है। तो मेनली टाइम इज़ मच मोर ये इम्पोर्टेंट
टाइम इज़ मेनली मच मोर इम्पोर्टेंट दैन योर वर्किंग, ठीक है। टाइम जो उनसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हर चीज़ वापस आई थी, चीज़ें सारी वापस आई थी, लेकिन टाइम जो गुजरता है वो वापस नहीं आता, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ है कि आपने इस चीज़ की तरफ फोकस करना है, इसको थोड़ा सा अपने जो सा बेस है ना उसको थोड़ा सेट करना है कि ये बेस में हो क्या रहा है, ये बेस कहाँ से ड्राइव हो रही है, कहाँ से निकल रही है, ठीक है। आप जब इसको करेंगी आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने इसको 4 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, लेकिन इसको आप करें साथ लाजमी, ठीक है। बेसिक से लेके चलें। यस आई कैन अंडरस्टैंड, ओके, जज़ाकल्लाह, मुझे बहुत नई चीज़ पता चली। कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे बेसिकली जो कोर्सेज होते हैं और ये जितने भी कोर्स करवाने बैठे हैं वो भी डायरेक्टली जो सा HTML पे लगाते हैं स्टूडेंट को, वो आपको C++ रूप का बताते ही नहीं है। जितने भी कोर्सेज वाले बैठे हैं उनका तो बिजनेस है एक, ठीक है। तो वो आपको बेस नहीं बताते, वो आपको डायरेक्टली चौथे स्टेप पे लगाते हैं, जो कि गलत चीज़ है। जब तक आपको बेस नहीं सिखाएंगे, वही बना कुछ चीज़ है ना, एक घर की बेस जब अच्छी नहीं होगी, कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो घर गिर जाता है। उसकी बेस जितनी स्ट्रांग होगी, जो मर्जी कर लो वो घर नहीं गिरेगा या वो चीज़ नहीं गिरेगी। तो मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, देन मूव टूवर्ड्स द डिज़ाइनिंग एंड अदर वर्क्स, ठीक है। आगे काम हो जाते हैं, आगे फ्रेमवर्क्स आपका काम और आसान कर देते हैं। अब हम C++ और ऊप को जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में ये चीज़ और शॉर्ट होती है। जब हम जावा स्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो रिएक्ट के साथ जो JS यूज़ होती है वो और शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनको करने का मकसद यही होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसको किसी भी चीज़ के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? एक हैंड और रेज हुआ था। सर मेरा एक और भी क्वेश्चन है सर आपसे। मैंने किया था एब्स्ट्रैक्शन का। जी एब्स्ट्रैक्शन का क्या बताएं। सर सर मैं कह रही थी कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास ये है कि हम सिर्फ एक चीज़ की मतलब डिटेल को बताते हैं, जैसे हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, बिल्कुल हमें सिर्फ बाहर जो दिखाई देता है उससे हमें फर्क पड़ता है। ऐसे ही है। एक अब जैसे इसकी एग्जांपल लाइफ टाइम टेलीविजन के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए अगर हम कॉल करें तो हम नहीं देखते कि इसके अंदर नेटवर्क कौन सा चल रहा है या इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल हमें बस बिल्कुल उस ऐसे ही। कॉल से मतलब है। उसके काम से मकसद होता है हमें उसके काम से मकसद होता है। हमें जी ये नहीं सर। होता कि हमें उसकी नेटवर्क का हमें नहीं चाहिए कि हम वो किस नेटवर्क पे काम कर रहा है। अगर कॉलिंग हो रही है तो कॉलिंग हमें चाहिए, हमें उसके नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है, ठीक हो गया। तो बेसिकली जी सर। एब्स्ट्रैक्शन ये होती है। एब्स्ट्रैक्शन थी पॉलीमॉर्स। ये तो डेटा हमारे पास स्क्रीन स्क्रीन हमारे पास क्या डेटा शो कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमें बस हमें प्रोग्रामिंग में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया। एक हमारे पास थी एब्स्ट्रैक्शन, एक हमारे पास थी इनहेरिटेंस, एक थी पॉलीमॉर्फिज्म, और एक और कौन सी होती है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? आप उसमें मैं एक मिनट मैं बताता हूँ किसने बताना। हमज़ा जुल्फ़कार, आप बताएंगे इनकैप्सुलेशन क्या होती है। जस्ट अ मिनट, मैं आप पे वापस आता हूँ ज़ोबिया। हमज़ा जुल्फ़कार प्लीज़ आप बताएं कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। जी सर, बेसिकली ये प्राइवेसी पे फोकस करता है। जैसे कि अगर हम डाटा जो है वो सेव रहता है लाइक इनसाइड अ कैप्सूल, ताकि ये मैस ना हो विद द आउटसाइड जो हमारा कोड है। ठीक हो गया। मतलब कि इसमें हम लोग जो बेसिक काम करवाते हैं, बिल्कुल ठीक बताया है। इसमें बेसिक काम इसको डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट मेथड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। पब्लिकली क्या करवाना है, प्राइवेटली क्या करवाना है, उन मेथड्स को इसमें कंट्रोल किया जाता है, ठीक हो गया। यस ज़ोबिया। जी ज़ोबिया बताएं, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मुझे ना ये पूछना था कि मैंने ना ये भी बहुत सुना है कि फ्रंट एंड इंजीनियर और फ्रंट एंड डेवलपर ये मतलब अलग होते हैं, क्या ये अलग होते हैं? मैंने सुना था ये कहीं मतलब कि लिखा हुआ था कि फ्रंट एंड इंजीनियर की नीड है या तो फिर वो, तो क्या ये दोनों अलग होते हैं, इंजीनियर और डेवलपर? नहीं, दोनों एक ही चीज़ होती है। फ्रंट एंड डेवलपर कह लें, फ्रंट एंड इंजीनियर कह लें, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर मैं आपको बताता हूँ। फुल स्टैक में क्या होता है, आपसे कोई पूछता है आप कौन सा डेवलपर, आप कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। हम फुल स्टैक में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आते हैं। अब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ गए, अब आप कैसे बताएंगे कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? तो आप बताएंगे कि मैं मर्न पे काम कर रहा हूँ। मर्न का मतलब है फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ जाते हैं। मर्न का मतलब ये होता है M फॉर मोंगोडीबी, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट, N फॉर नोड। तो दिस इज़ कॉल्ड योर स्टैक इन द फुल स्टैक।
और जस्ट आपको पूछे आप क्या करते हो, जो आपने कहना फ्रंट एंड डेवलपर या फ्रंट एंड इंजीनियर, तो दिस इज़ अ सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। दोबारा बताइए। किस चीज़ के हवाले से? ये फुल स्टैक के हवाले से? जी जी, इसी वाले से। अच्छा, फुल स्टैक, देखो आपसे कोई पूछता है ना कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो यू शुड सेड कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। फुल स्टैक, उसको पता लग जाएगा कि ये फुल स्टैक डेवलपर है, इसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आती हैं। अब वो कहेगा किस स्टैक पे प्रोफेशनल हो आप कहोगे मर्न स्टैक में हो, ठीक है, आपने सुना होगा सबने मर्न स्टैक का, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, ये सारे स्टैक्स होते हैं। अब आपको कहेगा कि मर्न स्टैक में प्रोफेशनल, मर्न का मतलब क्या होता है? मर्न का मतलब होता है एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस, आर फॉर रिएक्ट, एन फॉर नोड। मोंगोडीबी आपकी डेटाबेस है, आपका ई एक्सप्रेस जो सा बैकएंड पे यूज़ होता है, आर फॉर रिएक्ट वो आपका फ्रंट एंड पे एज अ फ्रेमवर्क है, नोड जे एस, एन फॉर नोड वो आपका बैकएंड पे एज अ फ्रेमवर्क यूज़ होता है। तो दिस इज़ अ फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर स्टैक ऐसे डिफाइन होते हैं। और जस्ट अगर आपसे पूछता कि आप क्या करते हो, तो आपको ये मैं फ्रंट एंड डेवलपर, उसमें जस्ट आपका फ्रंट एंड ही आता है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी, जैसे आप कहते हो किस पे किया आपको फ्रंट एंड, आप बताओगे रिएक्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया, उसमें टेक्नोलॉजी एंगुलर पे किया, ठीक है, तो मेनली ये आ जाती है उसके अंदर। जी हसीब। सर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी जी जी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड क्लास होगी, की? जी जी होगी होगी। ओके, थैंक यू। बाकी ये है कि आप लोगों ने अपनी बेस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मुझे ऐसा कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को डायरेक्टली HTML पे भी ले जाऊंगा, CSS भी करवा दूंगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैं आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको अगर चैट GPT से ही करवाना है तो आई विल, मेरे लिए मसला नहीं, मैं आपको 1 वीक में भी करवा सकता हूँ। लेकिन नहीं, हम लोगों ने उसको एक बेस को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अगर हम बेस को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे ना, तो आपको आगे आसानियाँ पैदा होंगी आपके लिए, अपने लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अपने काम में आसानियाँ पैदा करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ है, मैं आपको कहूँ कि लाइक आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और वो चीज़ आसान है, आपको मुश्किल ही नहीं आ रही, उसके अंदर मसले ही नहीं आ रहे, तो जब तक आप मुश्किल मसलों से नहीं निकलोगे आपको चीज़ें आगे आसान नहीं लगेंगी। एक दफ़ा की मेहनत होती है, एक दफ़ा की मेहनत कर लोगे तो आगे चीज़ें आसान है इंशाल्लाह, ठीक है। उसको आपने अच्छे से लेके चलना है, उसमें कोई मसला आता है, चीज़ें आती हैं। बाकी स्लैक का चैनल आप ज्वाइन कर लें सब लोग, अपने टास्क, अपनी जो चीज़ें आपको मिला करेंगी, यू शुड सबमिट ऑन द स्लैक, ओके। और कोई प्रॉब्लम होती है वो आपने व्हाट्सएप पे मुझे बता देनी है, पर्सनली आप बता सकते हैं, आई विल गाइड यू अबाउट दैट। बाकी चीज़ें जो सी हैं आपको बताई हैं कि इन चीज़ों से आपने स्टार्ट लेना है। लाइक हमारे पास अब डिफरेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि वेरिएबल्स हैं, यूज़र इनपुट्स हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स क्या हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हम उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, बुलियंस क्या होते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किन पॉइंट्स पे यूज़ की जाती हैं, हमारे पास लूप्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू आ जाता है। ये आप लोगों ने टोटली लैम्डा तक इसको कवर करना है, ठीक है। C++ आपका लैम्डा तक है, ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे लैम्डा तक है, जस्ट इसको आपने रिवाइज नहीं करना, इसको आपने टोटली प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? एक मिसाल है जी, आप गए हैं यहाँ पे वेरिएबल्स पे, ये वेरिएबल्स आ गए, इसको ट्राई इट योर सेल्फ पे जाए, यहाँ पे आपने इसकी एग्जांपल प्रैक्टिस करनी है, सारा आपको रन। अगर यहाँ पे कोई कोड रन नहीं हो रहा तो सिंपली यहाँ पे ओपन करें डेव C++ का ऑनलाइन कंपाइलर, ये आपका प्रोग्रामिंग्स का ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाता है आपको। यहाँ पे इसको आपने स्टार्ट करना है, इसकी जो भी कोड होंगे वहाँ पे आप लिख के अब रन करवाएं, वो रन हो जाएगा। बेसिक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जो कि हमें चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा करनी है। और इसका नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ें होंगी आपकी, जो कन्फ्यूज़ होंगी, वो नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस होंगी, उनको रिजॉल्व किया जाएगा, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक हो गया। ये आपका फर्स्ट टास्क है कि आप लोगों ने लैम्डा तक इन चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिसको थोड़ा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको टाइम टेकिंग थोड़ा टाइम लगता है, कुछ होते हैं ज़रा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप लोगों को इस चीज़ों का टाइम जो सा है वो है नेक्स्ट क्लास तक, मतलब नेक्स्ट क्लास तो है ही आपकी थर्सडे को, लेकिन नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी तब तक आपने सारा कुछ अपना रिवाइज कर लेना है, इन चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास तक इन चीज़ों को, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऊप को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऊप ऊप के जो टॉपिक्स हैं वो कम है इससे, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही आप लोगों को मैं इसकी C++ की असाइनमेंट जो सी है वो एक क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको असाइन करूँगा आपकी कन्फ्यूजन्स को पहले साइड पे करने के बाद। ठीक हो गया। देन ऊप के ऊपर आएंगे, ऊप को भी इसी तरह से हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, दे के उसकी असाइनमेंट करके दोनों चीज़ों को क्लियर करके देन वी मूव टूवर्ड्स द आवर स्टैक के हम लोग HTML CSS और बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने चलना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, कोई मसला है तो भी मुझे बताएं। सर वो स्लैक का क्या बता रहे थे आप, वो तो काइंडली दोबारा बता दें। वो स्लैक एक ग्रुप, जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप होता है हमारी कन्वर्सेशन के लिए, स्लैक होता है हमारे प्रोफेशनल कन्वर्सेशन के लिए। स्लैक के ऊपर जितने अभी इसका आप लोगों ने जो टास्क होगा वो नेक्स्ट क्लास में असाइन करूँगा आप लोगों को, वो PDF फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो PDF फॉर्म में होंगे, उनके आंसर जो आपके सारे जो जितने भी होंगे फंक्शंस बना के आपने PDF फॉर्म में ही सबमिट करना है, और वो आप लोगों ने स्लैक पे सबमिट करना। स्लैक जो सा आपका एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है फॉर कंपनी यूज़। ठीक है, वो ग्रुप होता है, मैं उसका ग्रुप मैं उसका ना लिंक जो सा है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी मैंने ऑलरेडी आगे भी शेयर किया था, आप आई थिंक ग्रुप में नहीं थे, तो मैं उसमें आपको ना दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, आप उसकी चैट को ज्वाइन करें, वो हम प्रोफेशनल टास्क के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपनीज़ में स्लैक को यूज़ किया जाता है फॉर योर प्रोफेशनल वर्क्स और आपके असाइनमेंट्स, आपके टास्क और इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक हो गया। उसके अलावा कोई आपको मसला आता है, चीज़ें आती हैं, आपने पूछ लेना है, किसी को भी कोई मसला आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ना किया तो फिर मैं क्वेश्चन करूँगा आप लोगों से, ये C++ से रिलेटेड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछने नेक्स्ट क्लास में, ये देख लेना। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, को मसला आता है तो मुझे आप बताएं, मैं आपको करवाऊँगा सारी चीज़ें। किसी चीज़ में भी है, एक दो टॉपिक्स में भी कन्फ्यूजन है तो मुझे आप बताओ। फर्स्टली आपने समझना कि है क्या चीज़। ठीक है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें एक एग्जांपल्स हैं वो कैसे करनी है सारी। ठीक है, इन एग्जांपल को प्रैक्टिस करो नेक्स्ट क्लास तक जितनी होती हैं। ठीक है, बाकी उससे आगे आपके पास सैटरडे संडे मंडे तक का दिन होगा, तो बाकी आप नेक्स्ट क्लास तक इसको हम लोगों ने नेक्स्ट वीक तक की दोनों चीज़ें कवर करनी है इंशाल्लाह। ठीक हो गया, नेक्स्ट वीक के अंदर। और फिर हम लोग अपने HTML CSS और बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे। जावास्क्रिप्ट पे हमें थोड़ा टाइम लगेगा, HTML CSS और बूटस्ट्रैप जो सी है उस पर हमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट वीक में जब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक के अंदर, उसमें हमारा ये होगा जस्ट हम आपको टास्क देंगे, उससे रिलेटेड टास्क करेंगे, आप लोग उस पर समझाएंगे। पहले बूटस्ट्रैप का पूरा आपको एक डेमो होगा, डेमो करके दिखाएंगे, करवा के दिखाएंगे कि इस पर काम कैसे होता है। जी हसीब। सर ये जरूरी तो नहीं है W3 स्कूल से ही करना है, ये यूट्यूब से भी हम कर सकते हैं कि मैं आपको बताता हूँ क्या, W3 अब W स्कूल क्यों कहा है मैंने आप लोगों को, आप लोगों ने इसको W3 स्कूल से ही करना है, यूट्यूब पे किसी ने नहीं जाना। ठीक है, यूट्यूब का मेन मकसद ये है कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट किसी और तरह दिए होते हैं, तो यहाँ से और वहाँ से करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यूट्यूब पे फ़िलहाल नहीं जाना, जब यूट्यूब की तो ज़रूरत सर अगर पड़ेगी। जी जी। एक टॉपिक सीखा है अगर सिंटैक्स का, तो इसकी हम अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे? मतलब प्रैक्टिस किस तरह से कह रहे हो आप? मतलब अगर कि हमने 3-4 टॉपिक्स पढ़े हैं, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, हम्म। असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स वगैरह, अगर हमने ये कर ली हैं, तो हम अगर हम चाहते हैं कि इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है तो वो किस तरह करेंगे हम? ये स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स आपने समझा जी, टॉपिक पढ़ लिया स्ट्रिंग पूरा। ठीक है, जी जी ये मैंने आपको बताया ट्राई इट योरसेल्फ। जी। यहाँ फंक्शन बना हुआ है, इसको अपने से चेंज कर करके देखो कि यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आती है। ये इसीलिए बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है, ये कंपाइलर है। ये कंपाइलर सारा। अगर आपके इस कंपाइलर में फंक्शन रन नहीं करता है तो आप यहाँ पे डेव C++ का ऑनलाइन कंपाइलर खोल के यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, यहाँ भी चलेगा हर कुछ। ठीक हो ठीक है गया। सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस रखना। ठीक है सर। यूट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यूट्यूब खुद रिकमेंड करूँगा, अभी यूट्यूब यूज़ नहीं करनी किसी ने। ठीक है, तो ठीक हो गया सर। उसमें ठीक है। यूट्यूब में मसला यही आता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, मेरा कुछ नहीं होगा उसके अंदर, मैंने तो कुछ नहीं करना, मैं आपको चीज़ें समझा भी दूंगा। ये जस्ट पहली क्लास में आप लोगों की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक दफ़ा खुद उस चीज़ से गुजरोगे तो आपको पता होगा कि चीज़ हो कैसे रही है, चीज़ को हमने रिवाइज़ कैसे करना है, हमने उस चीज़ को अपने माइंड में किस तरह से गो थ्रू करना है। आपको एक लर्निंग का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई ना भी करवाने वाला तो पता हो लर्निंग करनी कैसे है। एक लर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर कि लर्निंग को किया कैसे जाता है प्रोफेशनली, और इन चीज़ों को हम कैसे आगे लेके चलते हैं। ठीक हो गया।
जी ठीक है सर, थैंक यू। बाकी एज सच ये टॉपिक्स हैं आपके, मैंने आपको बता दिया। लेमडा तक आप लोगों ने कवर करना है। वी हैव द टाइम फॉर दीज थिंग्स नेक्स्ट टिल नेक्स्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे और नेक्स्ट एक आपकी क्लास जो सी होगी थर्सडे वाली, वहाँ तक हमारे पास के लिए टाइम है। वी हैव और यू कैन से 1.5 वीक वी शुड कवर दी ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। वी शुड क्लियर आवर C++ एंड OOP टिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, 2 वीक्स हैं, इसमें आपने अच्छे से जो मसले आते हैं आपने इसको ख़त्म कर देना। मसलों को मसला रहना नहीं चाहिए कोई। ठीक है, इस पे टाइम लगवाने का मकसद ये है कि आपको मसले ना आए आगे। आपको जो कंडीशन दी जाए, जो चीज़ आपको आगे आ जाए, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया? तो इसीलिए इसमें टाइम लगवाने का मकसद ये इन दो चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के इसके इश्यूज़ के ऊपर काम किया जाएगा और साथ आपको नेक्स्ट ऊप स्टार्ट की करवाई जाएगी और C++ के आपको टास्क दे दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में साइन हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपका टास्क है जो आपने करना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। तब तक आपके क्वेश्चन होते हैं आप मेरे से पूछ लें। अगर मैं कोशिश करूँगा कल रात को असाइनमेंट आप लोगों को सेंड कर दूँगा। अगर जिनका हो गया वो अपने असाइनमेंट्स करेंगे, और अगर जिनका नहीं हुआ हुआ तो मैं कोशिश यही करूँगा, परसों ही करूँगा, बल्कि परसों तक आपने इसको रिवाइज़ करें। आपके पास 2 दिन का टाइम है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, जो मसले आते हैं आपने मुझे परसों क्लास में बताने, और उनको इंशाल्लाह क्लास में रिजॉल्व भी करेंगे, उनको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। ठीक हो गया? एनी वन हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो। आपको कोई मसला है, कोई चीज़ है तो मुझे बताएं। कोई कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को समझने में भी तो मुझे बताएं। कोई ऐसी चीज़ समझ ना आई हो। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। Good, sir. यस सर। Clear. Najiba, are you understand my all the things? And Aisha Jamil, also you? Yes, sir. Okay. सो इंशाल्लाह वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपसे टॉपिक्स अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग उनके ऊपर चीज़ें स्टार्ट करें, और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में बताना है कि क्या मसले हैं, उनको इंशाल्लाह हम रिज़ॉल्व करते हैं और नेक्स्ट चीज़ों पे हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि हम लोगों ने कैसे चलना है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। ठीक हो गया? Yes, मैं sir. आपको अभी टॉपिक्स जो से हैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं और किस तरह से क्या करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये आप लोगों के टॉपिक्स है, और आपका रोड मैप है वो भी आपको भी ग्रुप में शेयर हो जाता है। ये आपके टॉपिक्स हैं, ये ग्रुप में शेयर हो गए हुए हैं। आपने इन पे इंशाल्लाह काम स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट क्लास में अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसका टेस्ट भी लूँगा मैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। जितना अपने आप को ईजी क्या कहते हैं रखना है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बर्डनाइजेशन वाला मसला नहीं। ईजी होकर चलना है, ईजी होकर काम करना है, और जो मसला समझ नहीं आता पूछना है। ये नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा, करवाया नहीं जाएगा, आपने पूछना है। ठीक है, आप जितना पूछोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ योर प्रोफेशनल वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड आपने उसका जितना फ़ायदा हो सकता है उठाना है हर चीज़ के हवाले से। ठीक हो गया? चलें, बाकी मैं इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करता हूँ उसमें ग्रुप के अंदर आपका रोड मैप भी। आपने इन चीज़ों को अच्छे से कर लेना है, और इंशाल्लाह फिर इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक हो गया? जी Okay, ठीक है sir. सर, ओके। Allah Hafiz. ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah ओके, अल्लाह Hafiz. हाफिज़।